یہ راز ہے جو اہل بیت آپ کو بتا کے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا گفٹ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور معرفت اہل بیت کا. نبی جب بھی دعا کرتے تھے ایک خاص انداز میں دعا کرتے تھے, ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور فرماتے. امام سے کسی نے پوچھا نا کہ مولا 9 مہینہ ایک ماں بچہ شکم میں رکھتی ہے, 9 مہینہ 9 منتھ, یہ بچہ 9 مہینہ ماں کو کچھ نہیں دیتا. یہ ہو کہ ماں کو بہت کچھ دے, نہیں, 9 مہینہ تکلیف دیتا ہے, پیدا ہوتا ہے اور زیادہ تکلیف دیتا ہے. جو برتھ کا انسان کو پین ہوتا ہے, اور چلو پیدا ہو جائے تو اب ماں کو خوشی دے, نہیں, پھر ماں 2 سال 4 سال 5 سال اس کو بڑا کرے, اس کی نجاستیں, اس کی غلاظتیں, پوری رات اس کے لیے جاگے, اس کی بیماریاں, اس کا علاج, ڈاکٹر کے پاس لے جانا لے آنا. کہ مولا 9 مہینہ تکلیف دے, پیدا ہوتے تکلیف دے, پھر پیدا ہو ماں کا دودھ پیے, آرام, سکون, نیند, یہ سب کچھ اس ماں سے چھین لیتا ہے. کہ مولا نیچرلی یہ ہوتا ہے, انسان اس کے لیے کرتا ہے جو اس کو کچھ دے. یہ چیز سمجھ نہیں آتی. بچے نے ماں کو کچھ نہیں دیا لیکن ماں پھر بھی اس سے کیا کر رہی ہے, محبت کر رہی ہے. تو مولا نے فرمایا یہ نہ ماں کا کمال ہے نہ اس بچے کا کمال ہے, فرمایا اس محبت کا کمال ہے جو خدا نے ماں کے دل میں رکھی ہے. اگر خدا ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ رکھتا, یہ ماں اس بچے کو نہ جنم دیتی نہ اس کو پالتی. اپنے جانور کچھ نہیں دیکھے, بچے پیدا کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. فرمایا یہ محبت کس نے رکھی, خدا نے ماں کے دل میں محبت رکھی. ایک بندر پہ ایکسپریمنٹ کیا گیا. دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, جانور سے بھی زیادہ. ایک بندریا کہتے ہیں, اس کو ایک پنجرے میں ڈالا. پنجرے کا نیچے جو گراؤنڈ تھا وہ ہیٹ والا گراؤنڈ تھا, اس کو انہوں نے جلا دیا. اب وہ گرم ہوتا گیا, ماں کھڑی تھی, بچہ کھڑا تھا, اور وہ ماں کے پاؤں, بندریا کے پاؤں جلنے لگے, اور جلتے جلتے اس نے اپنے بچہ چیخنے لگا تو اس نے اپنے بچے کو کیا کر دیا, اٹھا لیا, گود میں بٹھا لیا. لیکن جب ہیٹ اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی, جب اس کے پاؤں اپنے جلنے لگے تو آخر میں اس نے بچے کو نیچے رکھ کے خود بچے کے اوپر کیا ہو گئی, کھڑی ہو گئی. لیکن انسان جو ہے یہ ایسا نہیں ہے, انسان خود قربانی دیتا ہے بچے کے لیے. فرمایا یہ کس کا معجزہ, یہ خدا ہے, یہ اللہ کا کمال ہے جس نے ماں کے دل میں کس کی محبت رکھی ہے, بچے کی محبت رکھی ہے. یہ بچے کا کمال نہیں. آپ سارے مجلس امام حسین میں آئے, کسی نے زبردستی تو نہیں کیا آپ کے ساتھ. وہ کون سی چیز تھی جو آپ کو کھینچ کے فرش عزا پہ لائی, وہ محبت تھی جو آپ کو یہاں سے یہاں تک کھینچ کے لائی. لوگ 40 امام حسین پہ پیدل چلتے ہیں. میں ایک موقف میں گیا اور اس بندے نے بلایا کہ مولانا فلاں انسان کو دیکھے. میں نے کہا یہ ملٹی بلینر ہے, ملٹی بلینر, مطلب یہ گاڑی کا دروازہ بھی اس کے نوکر اس کے لیے کھولتے ہیں. زندگی میں شاید اس نے اپنے گھر میں جھاڑو تک نہ لگایا ہو. اور کہا مولانا دیکھیے یہ موقف کے اندر جو ٹوائلٹ تھا, WC تھا, وہ امام حسین کے ظاہروں کا کیا کر رہا تھا, صاف کر رہا تھا. یہ محبت ہے جو انسان کو یہاں سے وہاں تک پیدل لے کر جاتی ہے. میرے عزیز یہ محبت ہے جو جنتی بناتی ہے, اور یہی محبت ہے جو جہنمی بناتی ہے. محبت عرش تک بھی لے کے جاتی ہے, محبت فرش تک بھی لے کے آتی ہے. اب اہل بیت ہمیں یہ سکھاتے ہیں, کیونکہ محبت بہت خطرناک چیز ہے. اب اہل بیت نے یہ بتانا ہے کہ بندے خدا اپنی محبت کی سلیکشن میں 100 بار سوچنا کہ کس سے محبت کر رہے ہو. امیر شام بیٹے کی محبت میں گرفتار ہوا نا, خدا نے نوح کو کہا کہ بیٹے کی محبت میں گرفتار نہ ہونا, یہ محبت جہنمی بناتی ہے, یہ محبت جنتی بناتی ہے. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا نے کیا رکھا ہے, سکون رکھا ہے. ایک محبت ایسی ہے جو تجھے کیا دیتی ہے, سکون دیتی ہے. کربلا میں حسین کے روزے کو دیکھو گے تو روزہ کیا دے گا, سکون دے گا. کہ یاد رکھو سکون کس چیز میں ملتا ہے, سکون مال میں نہیں, دولت میں نہیں, پیسے میں نہیں, گاڑی میں نہیں. سکون کس میں ہے, محبت میں ہے. اب آپ نے کہا کہ میں نے مولا حسین کے روزے کو دیکھا, قبر امام حسن کو دیکھا, مجھے کیا ملا, سکون ملا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ کو سکون ملا کیا کہ وہابی جب دیکھتا ہے سکون ملتا ہے؟ کہا نا کہ مومن و منافق کی پہچان کہ علی کا نام لو, چہرہ کھلے تو مومن, چہرہ بگڑ جائے تو کیا ہے, منافق. ایک ہی نام ہے, 2 کام کر رہا ہے, کسی کو جلا رہا ہے, کسی کو کھلا رہا ہے. تو سوال ہے اگر کربلا میں سکون ہوتا تو سب کے لیے ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہے. کربلا شیعہ کے لیے باعث سکون,
वहाबी का सुकून तबाह। हाँ भाई, मंदिर है ना हिंदुओं का, तो एक हिंदू जाता है सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? वो कहता है शांति आ गई मंदिर में आकर। लेकिन आप जाते, होता है कलीसिया चर्च में, जब एक मसीही जाता है तो उसे क्या मिलता है? सुकून मिलता है। हम जाते हैं तो हमें सुकून नहीं मिलता। आपको पूछा जाएगा मस्जिद में सुकून या मंदिर में, तो आप कहोगे मस्जिद। हिंदू से कहोगे मस्जिद में सुकून या मंदिर में, कहेगा मंदिर। तो हर किसी का सुकून अपनी अपनी जगह पर है। तो फिर ये तो सुकून तो डिवाइड हो गया। हिंदू को मंदिर में मिले, क्रिश्चियन को चर्च में मिले, शिया को हरम अहले बैत और काबतुल्लाह और रोज़े रसूल में मिले। तो असल में सुकून कहाँ है? तो अहले बैत ये समझाना चाहते हैं, अल्लाह ने सुकून रखा है मोहब्बत में। किसी की भी मोहब्बत हो, अपने बेटे को लोगे, बेटी को लोगे सीने पे, कहोगे मेरी बेटी मेरे दिल का चैन है। आपका बच्चा कोई दिल का चैन में नहीं है, हाँ, आपके लिए दिल का चैन है। अब इस मोमिन के रखो सीने पे, कहेगा भाई मुझे क्यों चैन मिलेगा, उठा अपना बच्चा। हाँ, आपके बच्चे से आपको सुकून मिलता है, पूरी दुनिया को सुकून नहीं मिलता, क्योंकि आपका बच्चा है। आप उससे क्या करते हो? मोहब्बत करते हो। आप जिससे मोहब्बत करते हो उससे आपको क्या मिलता है? सुकून मिलता है। इमाम हसन के एक वाक़या बड़ा प्यारा है। कहते मौला हसन एक जगह से गुजर रहे थे, एक खराबा, एक टूटी हुई जगह थी। देखा मौला का एक चाहने वाला, एक दीवार है, उस दीवार की तरफ इसके हाथ में तीर व कमान है और ये निशाना लेके उस दीवार पे तीर मारना चाहता है। कि जैसे तीर मारने वाला था और गोया तीर कमान से निकलने वाला था, तो इमाम हसन ने इसके दोनों हाथों को क्या कर लिया? पकड़ लिया, कि जैसे ये तीर को कमान से न निकाले। इसने मुड़ के देखा, कौन? हसन इब्न अली। कि मौला क्या कर रहे हैं, मेरे हाथों को छोड़िए छोड़िए। इमाम ने कहा नहीं छोड़ूंगा। कहते थोड़ी देर गुजरी, फिर इमाम ने हाथ छोड़ दिए। कि मौला आपने तो गजब कर दिया। इमाम ने क्या हुआ? कि मौला मैं कई सालों से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। इमाम ने कहा इस लम्हे में क्या है? कि मौला किसी नुजूमी ने मुझे बताया था कि हर 100 साल के बाद आसमान के ऊपर 2 सितारे हैं, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं और चंद लम्हों के लिए करीब आते हैं, और उसी वक्त अगर कोई तीर किसी दीवार पे मारे तो पूरी दीवार सोने की बन जाती है। तो का मौला मैं करोड़पति बनने वाला था, मैं अरबपति आज बनने वाला था। मौला कितने दिनों से उस नुजूमी से पूछ रहा हूँ, डेली रात को आता हूँ, आसमान को देखता हूँ मौला, आज वो घड़ी थी और आपने मुझे करोड़पति बनने से क्या कर दिया? मौला रोक दिया। इमाम ने कहा अच्छा। कहा मौला अब सितारे 100 साल के बाद मिलते हैं और वो लम्हा करीब आया था और आपने उसी वक्त आज ही पकड़ना था आपने मुझे। मौला कल पकड़ लेते, दोपहर को पकड़ लेते, आज आके आपने पकड़ लिया। इमाम ने कहा कोई बात नहीं है, तीरो कमान उठा। इसने तीरो कमान उठाया। कहा मौला ये सितारे 100 साल के बाद मिलते हैं। इमाम ने कहा उठा ले, इत्तफाक है फिर शायद मिल जाएं। इसने कहा ठीक है मौला। इसने तीरो कमान उठाया, इसने तीर को खींचा और जैसे खींचा और आसमान में देखा वो सितारे फिर करीब आ चुके थे। अब ये तीर को छोड़ने वाला था। इसकी खुशी का आलम था कि मौला तो मोजज़ा हो गया है, जो सितारे 100 साल के बाद मिलते हैं ये आज फिर मिल चुके हैं। अब छोड़ने ही वाला था, मौला हसन ने फिर इसके हाथों को पकड़ लिया। अब देखिए उस बंदे की कैफियत क्या होगी, हालत क्या होगी। तो अरबपति और करोड़पति बनने वाला था एक लम्हे में, लेकिन मौला बार बार हाथों को पकड़ रहे हैं। कि मौला क्या कर रहे हैं? सितारे आपस में मिल चुके हैं। इतनी देर तक इमाम ने पकड़ा कि वो सितारे फिर क्या हो गए? जुदा हो गए। कि मौला आपने फिर मुझे करोड़पति बनने से रोक लिया, मौला फिर अरबपति बनने से रोक लिया। ये कभी नहीं होता, नुजूमी ने बताया, एक बार होता है। इमाम ने कहा चलो फिर तीरो कमान उठा। इसने फिर तीरो कमान उठाया, फिर इसने उसी तरह तीर को खींचा, फिर सितारे आपस में मिलने लगे। इमाम ने फिर इसके हाथों को पकड़ लिया। कहने लगा मौला ये कर क्या रहे हैं? बार बार करिश्मा मोजज़ा हो रहा है, सितारे मिल रहे हैं। मौला ये बार बार चीजें नहीं होती हैं। कहता इसने फिर इमाम ने कहा तीरो कमान उठा। अब इसने तीरो कमान उठाया। इमाम ने कहा तीर को खींच। इसने फिर तीर को खींचा, लेकिन अब जब खींचा तो सितारे एक दूसरे के करीब नहीं आए। इसने कहा मौला ये बार बार होने वाला नहीं है, ये किस्मत से हो रहा था, सितारे मिल रहे थे। इमाम ने कहा कोई बात नहीं, तो तीर को कमान से छोड़ दे, तो तीर को रहा कर दे। कि मौला सितारे नहीं मिले तो दीवार सोने की नहीं बनेगी। इमाम ने कहा मैं कहता हूं तीर को कमान आजाद कर। इसने तीर को कमान से जैसे छोड़ा और जैसे दीवार पर लगा तो पूरी दीवार
सोने की बन गई। फरमा हम दीवारों को सोने बनाने के लिए सितारों को मिलाने के मोहताज नहीं हैं। फरमा हम बस इरादा करें तो दीवार सोने की बन सकती है। और कहा कि तूने शायद गौर नहीं किया, जब मैं कहता था तीर को खींच तो सितारे एक दूसरे के करीब आते थे। और तुझे समझाने के लिए कि अगर हम चाहें तो ज़मीन को सोना बना सकते हैं, दीवार को सोना बना सकते हैं। कि मौला जब आप ये चाहते और हर चीज़ सोना बन सकती है तो मौला बना क्यों नहीं रहे? इमाम ने फरमाया तुम्हारे पास वो दौलत है जो अमीरों के पास भी नहीं है। अगर तुझे ये सोना चाहिए आज मैं हसन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे वापस कर दे। मौला क्या आप मुझसे लेंगे और क्या मुझे देंगे? कि जिस भी दीवार को बोलेगा पूरी सोने की बन जाएगी, सारा सोना तेरा, ले जा अमीर बन जा, लेकिन हमारी मोहब्बत हमें वापस कर दे। कहने लगा मौला वल्लाह दुनिया भी दी जाए आपकी मोहब्बत वापस नहीं करूँगा। इमाम ने फरमाया अब बता तू अमीर है या सोने वाले अमीर हैं? जबकि तू इतनी कीमती चीज़ देने के लिए तैयार नहीं है तो कभी खुद को गरीब न बोला कर। जिसके दिल में मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद है, फरमाया उससे बड़ा अमीर रूए ज़मीन इंसान नहीं है, क्योंकि इसी मोहब्बत के बदले में खुदा तुझे वो कुछ देगा जिसका तुमने ज़िंदगी में तसव्वुर नहीं किया। नबी की खिदमत में जो भी आता था, बीमार था, परेशान था, बे औलाद था, कर्जदार था, या रसूल अल्लाह मेरे हक़ में क्या कीजिए, दुआ कीजिए। कहते नबी अब दुआ मुख्तलिफ अंदाज में कर सकते थे, लेकिन बारहा अपनी दुआओं में मोहम्मद और आले मोहम्मद के जिक्र करने का नतीजा ये था कि लोगों को बताएं कि इनकी मोहब्बत में ही तुम्हारी फलाह व बहबूद है। क्योंकि इनसे मोहब्बत करोगे तो इनके किरदार से मोहब्बत करोगे, इनसे मोहब्बत करोगे तो इनके दुश्मनों से और उनके किरदार से दूरी करोगे, तो तुम्हारे वजूद में नूर और नूरानियत आ जाएगी। अब जो भी आया या रसूल अल्लाह मेरे हक़ में दुआ कीजिए। फरमाते नबी जब भी दुआ करते थे एक ख़ास अंदाज में दुआ करते थे, हाथों को बुलंद करते थे और फरमाते थे अल्लाहुम्मा इरहम अला फुलानिन बेहक़्क़े अली, ऐ खुदा फलां पर रहम कर। किसके सदक़े में? अली इब्न अबी तालिब के सदक़े में। का एक बीमार आया इस अंदाज से दुआ की, दूसरा बीमार आया इसी अंदाज से दुआ की, तीसरा बीमार आया इसी अंदाज से दुआ की। अब ज़ाहिर है अतराफ़ में जो बैठे थे सबके दिल खुश तो नहीं होते थे ना आले रसूल का नाम सुन के, तो इन्होंने आपस में चहमगोइयाँ शुरू कर दी। का देखो अरे ये कैसे इंसाफ की बात है, रसूल हैं जब भी दुआ करते हैं किसका नाम लेते हैं? अली का नाम लेते हैं। आज कह दो कि या रसूल अल्लाह एक दो दुआ में कभी इसका नाम भी ले लें, हम भी तो महफिल में बैठे हैं, कभी उसका नाम ले लें। अब ये कहाँ जानते थे दुआ कबूल करवानी थी, दुआ को नाकाम तो नहीं करवाना था। तो ये कहने ही वाला था तो इसके दूसरे ने कहा जनाब सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। का क्या मतलब सब्र करो? देखो दुनिया आती है, रसूल अली का नाम लेते हैं, कभी कोई दिन आएगा जब अली खुद बीमार हो जाएंगे, तो फिर मजबूरी की हालत में आपका नाम लेकर दुआ करनी होगी या मेरा नाम लेकर दुआ करनी होगी। कहते वाक़या मक्के का हिजरत करके मदीने चले गए और वहाँ पे इतने अरसे के बाद इत्तफाक से ये दोनों भी नबी की खिदमत में बैठे थे और उसी वक्त अमीरुल मोमिनीन रसूल खुदा की खिदमत में आ गए और फरमाया या रसूल अल्लाह अली की तबीयत नासाज है, ज़रा मेरे हक़ में दुआ कीजिए। अब ये सुनना था कि जैसे इनकी तो किस्मत चमक गई हो और बड़ी खुशी के आलम में एक दूसरे को देखने लगे। अब देखना या तेरा नाम लेकर दुआ करेंगे या मेरा नाम लेकर दुआ करेंगे। लिखने वाला लिखता है कि दोनों एक दूसरे को कोहनियां मारने लगे, बस अब या तेरा नाम आएगा या मेरा नाम आए। किताब मुरूज ज़हब है। कहते रसूल खुदा ने दुआ के लिए हाथों को बुलंद किए, बड़े अजीब अंदाज में दुआ की। फरमाया अल्लाहुम्मा इरहम अला अलीयिन बिहक़्क़े अली, ऐ खुदा अली पर रहम फरमा अली के सदक़े में। अब मिलता है दिल में जो निफाक था वो ज़बान पे निकल के आ गया। कहने लगे या रसूल अल्लाह ये कैसे इंसाफ की बात है, जब कोई और आता है अली का नाम लेते हैं, आज अली आए हैं फिर भी अली का नाम लिया है। अरे हम सामने बैठे हैं, कभी हमारा नाम लेकर भी तो दुआ कीजिए। कहते ये कहना था, रसूल के चेहरे पे आसार जला नुमाया हुए। कहने लगे लोगों तुम अली की बात करते हो, जब मैं नबी अपने लिए दुआ करता हूं तो फिर भी खुदा को अली का वास्ता देकर दुआ करता हूं। हाँ? और कभी अमीरुल मोमिनीन ने पूछा या रसूल अल्लाह लोगों को अच्छा नहीं लगता
آپ بار بار دعاؤں میں میرا نام لیتے ہیں. تو رسول نے فرمایا علی جب میں دعا کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں میرے بعد کائنات میں خدا کو سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون ہے کہ تیرے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. اسی طرح شیعہ بھی جب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں کہ خدا کو کس کا واسطہ دیں تو پنجتن سے زیادہ عزیز شخصیات ملتی ہی نہیں ہیں کہ تبھی ہم کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، جن کا وجود مقرب ترین وجود ہے پروردگار عالم کی ذات کے مطابق. تبھی فرمایا کہ ان کی محبت میں خدا نے کامیابی رکھی ہے. بعض احادیث میں حل الدین الا الحب والبغض، فرمایا کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ اور ہے؟ دین کا خلاصہ یہی ہے، یا محبت ہے یا بغض ہے. صحیح محبت تو جنت، غلط محبت تو جہنم. بغض بھی اس سے کرنا جو قابل بغض ہو، نفرت بھی اس سے کرنا جو قابل نفرت ہو، اور محبت بھی اس سے کرنا جو قابل محبت ہو. یہ اہل بیت